Today's session is a screenplay of a thriller movie of unforeseen courage, twists and turns, dauntless and pure grit, applied with business acumen to become a larger-than-life success story. Ladies and gentlemen, I'm bringing to you today Prakash Parekh, MD, Plastine India. Incorporated in 1998, Plastine is one of India's leading plastic packaging companies, having a diverse product portfolio. Woven fabric, industrial and bulk packaging, FIBC, tarpaulin, and multi-filament yarns with 10 manufacturing locations in India and one in Uruguay. Plastine currently exports to around 30 countries and derives close to 80% sales from international customers, all in a matter of 2 decades. આ શોમાં તમારો ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. લોકોને તમારા જીવનમાંથી ઘણું શીખવાનું મળશે. પ્રકાશજી, a very warm welcome to the show, Insights with Nidhi Verma. Thank you. Good evening, Nidhi. Thanks for inviting me for the show. Prakash, your journey has been extremely interesting, like a cliffhanger, full of adventures, struggles, unprecedented events, unpredictable decisions, and of course, the resounding success. Your family, the Champalal Group, was not into packaging at all. You were the first engineer of the family, went to Australia for further studies in '98, and while in Australia, you pioneered the recycling industry by exporting recycling plastic scrap from Australia to India. You began utilization of recyclate into rotomolded tags back in 2002. When you were at the top of your game, you quit and then got into plastic woven material. Why did you leave recycling and diversify into packaging sector, Prakash? Nidhi, in recycling business, it was more or less depending on the government policies, notifications, and every day here and there, some changes were happening. So one fine day, I thought, at that time I was only 30 years old. So that time I thought it's probably the right time for me to probably get out of this industry and do something new, something big, rather than just sticking to the same industry. And hence, and I knew that if I want to do something else, it's better to focus on one thing rather than probably focusing on 2 different industries. So I thought, let's quit and then think something else. Then only probably I can be successful. So immediately I thought and I quitted the recycling industry. Actually, आपको तो pioneer बोल सकते हैं recycling का. In 2004, you took a huge risk by installing huge capacity of 21,000 tons at one go, with absolutely no experience. इतना guts, इतना बड़ा decision, आपने कैसे लिया, प्रकाश? 2004 में जब हमने सोचा कि हमको कुछ और नया करना पड़ेगा, क्योंकि रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट वी अचीव्ड द बेस्ट. आई मीन आई वाज द बेस्ट वन इन इंडिया. हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए थे, जैसे रोटो मोल्डिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो पॉलीमर जाता है रिसाइकलिंग का, मैंने उस टाइम डेवलप कर लिया था. तो उसी टाइम फिर ज्यादा अचीव करने के लिए था भी नहीं उस इंडस्ट्रीज में, प्लस गवर्नमेंट पॉलिसीज के भी इश्यूज थे. तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही था भी कुछ ना आगे क्या करना है. 2001 में we have an earthquake in Kutch, and my family belongs to the Kutch area only. So at that time, government came up with a special incentive scheme where there was an excise as well as sales tax exemptions. So we were very clear on it कि अगर इतने exemptions अपने को मिल रहे और अपने घर पे इंडस्ट्री डाल के मिलने वाले हैं, तो मैं क्लियर ही था कि भाई कुछ भी अपन इस इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्रीज अपने को ढूंढना है जिसमें माल बेचने का प्रॉब्लम नहीं हो. कॉस्टिंग तो बैठ जाएगी क्योंकि आपके पास इतना आपके पास इंसेंटिव है. तो इमीडिएटली हमने उस टाइम 21,000 टन की कैपेसिटी स्ट्रेट अवे प्लान की. 4 प्लांट एक साथ लोहिया से बुक किए. राजकुमार जी ने खुद ही मेरी फैक्ट्री आके उस टाइम पे इनॉग्रेट की थी. तो इट्स लाइक यू नो वी वर कॉन्फिडेंट कि हम माल तो बेच लेंगे, कोई ऐसा कोई इश्यूज नहीं था और हिम्मत कर ली. अब ये तो रिलेटिव टर्म है. आप बोलोगे कि इतनी हिम्मत, मैं बोलूंगा कि छोटी हिम्मत है, तो रिलेटिव टर्म है. आप किसको ज्यादा बोलेंगे, किसी को कम बोलेंगे. बट इतनी हिम्मत कम देखने को मिलती है.
प्रकाश, एक्सपोर्ट्स में एस्टैब्लिश होने में बहुत लीड टाइम लगता है, प्रोसेसेस होते हैं, डिफिकल्टीज होती हैं। आपको ये डिटर नहीं किया कि इतना एफर्ट करना पड़ेगा वर्सेस सेलिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट? टू बी इफ यू आस्क मी रियली, मेरे को ये लगता है कि एक्सपोर्ट्स मार्केट में अगर आप एक बार आपको इस्टेब्लिश कर लेते हो ना, तो आपके बिजनेस की लाइफ लंबी होती है। डोमेस्टिक के अंदर हम एक टाइम सारी बड़ी सीमेंट कंपनी और फर्टिलाइजर कंपनी को बैग्स देते थे, चाहे वो इफ्को बोलो, आरसीएफ बोलो, एनएफएल बोलो, अल्ट्राटेक बोलो, सांगी सीमेंट बोलो, बिरला ग्रुप की सारी सीमेंट कंपनीज को हम लोग बैग्स देते थे। एक टाइम में हम महीने की 1.25 करोड़ बैग्स तक भी हम लोग बनाते थे, और फर्टिलाइजर में अबाउट 40 लाख बैग बनाते थे। पर वहां होता था क्या कि 12 महीने होते हैं, तो चाहे वो बड़ी कंपनियां तो रिवर्स ऑप्शन कर लेती थी या वापस टेंडरिंग कर लेती थी, कोई नया प्लेयर आता था, प्राइस घटा देता था, और इधर हमारी कॉस्ट तो बढ़ रही थी। तो उसी टाइम हमने सोच लिया था कुछ ऐसा करना है कि जहाँ पे एंट्री बैरियर्स हो। एक्सपोर्ट्स के अंदर आज एफआईबीसी जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, एक कस्टमर डेवलप करने में हमको 6 से 8 महीने लगते हैं और लाखों रुपए खर्चे होते हैं। मतलब ट्रायल लो, सैंपलिंग करो, सैंपल लॉट भेजो, कुरियर करो, तो थोड़ा टाइम जरूर लगता है। पर उसमें एक बार अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो वो बिजनेस थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल है, एंट्री बैरियर्स काफी है। तो इसीलिए हमने उस टाइम पे सोच लिया था विल मेनली फोकस ऑन एक्सपोर्ट। मुश्किल रास्ते में जाने को आपका मतलब, यू हैड द साहस टू गो ओवर दैट डिफिकल्ट पाथ? Yeah, obviously. I mean, you call it sahas. I think it's a challenge which I've always enjoyed. So it's not something sahas. I will, in my own definition. आपकी डिक्शनरी मुझे जरा सर, आई हैव टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट्स डेफिनेटली अ डिफरेंट डिक्शनरी. Which overseas markets out of over 30 countries that you're exporting to are your strongholds? USA is the main country where we are exporting our maximum. Plus Benelux and France is other two markets where most of our products are getting exported, apart from the other countries, like 30 countries, what you said. You have world-class organizations as your key customers, European and American companies, as you've mentioned. They are known to be very stringent on quality standards and delivery guidelines. Share some incidents, Prakash, where आपने तो commitment कर दी, उसके बाद कुछ और issues और challenges आ गए, और फिर आपको तकलीफ हुई वो commitment को पूरा करने के लिए. फिर आपने क्या किया? May 2017 में we had a massive fire in our organizations. My main unit in Nani Chire almost got burnt. The losses were in tune of 60 to 80 crore rupees. We have taken lot of orders. सारे customers को shipments करने थे हमको, क्योंकि हमारे ग्रुप में 5-7 और भी यूनिट्स थी, तो महीना 2 महीना लगा हमको डेवलप करने के लिए। पर हमने किसी भी तरह माल तो बना लिया उस टाइम पे। अभी उनका इतना प्रेशर था कि मेरे को काफी कार को उनको एयर शिपमेंट करने पड़े। अब एयर शिपमेंट में होता है कि हमारा प्रोडक्ट तो 150 रुपए किलो का है, और मेरा एयर फ्रेट की कॉस्ट आ गई 500 रुपए किलो, एंड हमने एक भी पैसा किसी भी कस्टमर से चार्ज नहीं किया, एंड ऑल द कस्टमर्स अप्रिशिएटेड. So those kind of challenges also we have faced, and today all the customers are still with me in spite of the fire. And in fact, we also have a second fire also in October 19. But now second time everybody is confident that since they are doing the business with Plastine, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा कि प्लास्टीन हमेशा अपने वर्ड्स पे कमिटेड रहेगा। कितना भी खर्चा आ जाए, कितना भी लॉसेस आ जाए, we will be at it because our commitment we know how to adapt. एक बार प्रकाश ने कमिटमेंट कर दी तो वो अपनी आप की नहीं सुनते. I think you build these relationships over a long period of time. Excellent. 15 years with the customer, so they are like a family for me, to be very honest. Customers are my family. So. You are known to take challenges based on your commitments with respect to your deliveries also. हमें कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट या एक्सपीरियंस बताएं जो कॉम्पिटिटर्स कभी सोच भी नहीं सकते करने को. क्या है कि 2005 में हमने 21,000 टन की कैपेसिटी से चालू किया, फिर 1.5 साल बाद हमने एक्सपांशन किया वही कैपेसिटी को 45,000 टन करने के लिए, और उसके लिए हम लोग पब्लिक इशू लेके आ रहे थे. हालांकि पब्लिक इशू
2012 में आया। तो अभी प्लांट तो आने चालू हो गए, प्लांट चालू आने हो गए। अभी मेरे को मार्केट का क्या करना है, टाइम लगता है जनरली। कोई भी अगर आप इतनी बड़ी कैपेसिटी बढ़ा और रातों रात कोई मार्केट आता नहीं है। तो उस टाइम पे हम सांगी सीमेंट के पास गए। ये उनकी कच्छ के अंदर फैक्ट्री, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ 50 लाख बैग पर मंथ की है, और एक बैग 7 रुपए की आती थी उस टाइम, सीमेंट की बैग। मैं आलोक सांगी के पास गया, आई मेड हिम एन ऑफर, कुछ 1 आध रुपया कन्वर्शन मैंने कम किया और उनको ऑफर दिया कि आपकी 50 लाख की 50 लाख बैग मैं आपको सप्लाई करूंगा, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका प्लांट मेरी बैग के कारण बंद हो जाता है तो मैं 100 रुपए पर बैग पेनल्टी लूंगा। बैग की कीमत 7 रुपए थी, एंड दे हैप्पीली गेव मी दैट कॉन्ट्रैक्ट because I had a past performance also with him, so they trusted me, plus उनको कुछ सेविंग भी हो रहा था। तो ऑलमोस्ट मैंने 50 लाख बैग का सीधा मार्केट वहां से ले लिया, और सारे कंपटीटर्स लोग हक्के बक्के भी रह गए कि यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में। तो साल 2 साल तक हमने वो हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा चला। फिर धीरे धीरे हम वैल्यू एडिशन में माइग्रेट हो गए, हम लोग FIBC में चले गए थे, बिकॉज टीम तो थे कि पोर्ट के पास हम लोग थे, तो हमको पता है फ्यूचर तो हमारा एक्सपोर्ट ही होने वाला था। और धीरे धीरे जैसे मार्केट हमारे हाथ में आता रहा, उनको भी दूसरे सप्लायर्स को हमने ही करवाया, हमने ही दूसरे सप्लायर को वापस उनको इंट्रोडक्शन करवाया ताकि दे शुड नॉट सफर। तो दिस आर द चैलेंजेस हमने फेस किए। हमने कंपटीटर्स को एक बार तो मतलब मार्केट लेना था, तो दे वर ऑल शॉक्ड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि 7 रुपए की बैग में लोग 100 रुपए की पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दिस वाज one of the incident I can say. Unheard of. Prakash, what made you put up a plant in Uruguay? I mean, from where did that come? We had a good market in Brazilian market. So there was one customer bought textiles in Brazil. तो हम लोग उनको हर महीने का कुछ 3-4 करोड़ रुपए का माल देते, साल का कुछ 40-50 करोड़ रुपए का हमारा उस कस्टमर को सेल हो रहा था। तो साल 2 साल हम उसके साथ बिजनेस कर रहे थे। 2009 या 10 में वो इधर आया मेरे पास, शायद 10 में आया था। मैंने एक नई फैक्ट्री यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रही थी, he was one of the chief guests there. So he gave a proposal कि why don't we do a joint venture factory in Brazil. So he sent me some proposals. There is an area called Manaus in Amazon in Brazil. तो वहाँ पे भी कुछ इंसेंटिव्स चल रहे थे ब्राजीलियन गवर्नमेंट के, तो काफी लुक्रेटिव प्रोजेक्ट था। तो मैं ब्राजील गया, हफ्ता 10 दिन वहाँ पे रुका, वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी से मीटिंग की, ब्राजील का कल्चर समझा, ब्राजील की कॉस्टिंग समझी, मार्केट समझा। और मेरे को भी इस तरह की चैलेंज लेना हमेशा पसंद है, तो वी सेड ओके फाइन, लेट्स गो अहेड। फिर कंपनी फॉर्मेशन हुई, जब बाकी सब कंडीशंस हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तो उस कस्टमर ने मेरे को खाली 25% मेरे को पार्टनरशिप ऑफर की। मैं वो वहां की ब्राजील कंपनी एक्चुअली मेरे पैसे से चल रही थी, तो मैं उसको उधार दे रहा था। वहां बैंकिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि 25% पार्टनरशिप तो बेटर आप ही रखो, हम आपको माल ही सप्लाई करेंगे, आप ही आपके हिसाब से करो। अब वहां पे नॉलेज ले लिया था हमने, और हमको भी लुक्रेटिव लग रहा था। हमने बोला चलो हम हमारे बलबूते पे फैक्ट्री डाल देते हैं, हमको क्या जरूरत है आप लोगों को। तो फिर हमने तैयारी की, चलो हम ही ब्राजील में फैक्ट्री डाल देते हैं। तभी एक कोई कंसल्टेंट आया मेरे पास, उसने कुछ बताया कि ब्राजील से बेटर उरुग्वे रहेगा, आप इसको स्टडी करो। 1 साल बाद मैं उरुग्वे गया, मैं वहां पे भी 10-15 दिन रुका, मॉन्टेविडियो में रुका। इट इज ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल सिटी, लोग भी काफी अच्छे लगे। छोटी सी कंट्री है, 35 लाख की पॉपुलेशन है, बोला जाता है इसे स्विट्जरलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। और मेरे को फिर सरकारी लोगों से बातचीत की और अच्छा लगा, तो हमने बोला चलो एक हिम्मत कर ही लेते हैं। अच्छा, हमने वहां पे क्या किया कि खाली कन्फेक्शनरी यूनिट डाली थी। कन्फेक्शनरी यूनिट मतलब हम लोग फैब्रिक नहीं बनाने वाला, हम वहां पे कटिंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग ही करने वाले। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम था मशीनरीज के अंदर, जो था मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल का था, तो ये क्लियर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मशीन वापस इंडिया लेके आ जाएंगे। जो लॉसेस कोई ज्यादा होने नहीं वाले थे, तो हमने बोला चलो कर लेते ये। तो ये सोच के फिर उरुग्वे फैक्ट्री हमने चालू कर ली, और 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए।
running now. It's not very big company, but we knew it that whenever we want to expand in that continent, now we have establishment in South America. आपका बेस है. या एक बेस सेट हो गया 7 साल से, तो कभी भी साउथ अमेरिका में एज अ ग्रुप हमको एक्सपांड करना है तो हम इजीली कर पाएंगे, इसलिए फिर ऐसे उरुग्वे स्टोरी चालू की. बहुत ही एन्चेंटिंग स्टोरी है. Prakash, you are number 2 producer and exporter of FIBC from India. What is your action plan to become number 1? देखो, नंबर 2 बनने का भी कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया, तो काम करते करते हो जाते, तो कोई नंबर 1 का एक्शन प्लान बनाया हुआ है, न नंबर 2 का हमने बनाया था. मेरा ये हमेशा मानना है, आई एम डिफरेंट, आई मीन माय फिलोसफी एंड वे ऑफ वर्किंग. मैं कभी भी ये 5 साल के प्रोजेक्शन, 3 साल के प्रोजेक्ट, 7 साल के प्रोजेक्शन में बनाता नहीं. इसलिए नहीं बनाता हूँ, अगर मैंने बना दिया तो प्रेशर मेरे भी आ जाता है. प्रेशर के अंदर आप काम नहीं कर पाते हो. तो ठीक है, जो सिचुएशन जैसा जैसा माहौल, यू एंजॉय योर वर्क, और ऐसे हम लोग प्लानिंग करते. तो ऐसा कोई प्लानिंग किया नहीं नंबर 1 का, और नंबर 2 का भी नहीं किया था. तो लेट्स सी, जो होगा अच्छा ही होगा आगे. आपको देख के मुझे ये बात याद आ रही है कि मैं अकेले ही चला जा रहा था, मगर लोग आते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया. प्रकाश, एनी एक्सपेंशन प्लान्स? लास्ट ईयर हमने एक 60 करोड़ का एक्सपेंशन कंप्लीट किया साणंद के अंदर. पूरा एयर कंडीशनिंग यूनिट है, 10,000 टन FIBC बनाने का, तो वो हमने प्रोडक्शन चालू कर लिया है. अभी करंट एक्सपेंशन प्लांट अभी गांधीधाम नानीचीरे में बन रहा, चालू ऑलरेडी हो गया. 2-3 महीने में सारा प्रोडक्शन भी आ जाएगा. वो भी 10,000 टन है, पर उसमें हम लोग फैब्रिक, लाइनर और वेबिंग वगैरह इनपुट मटेरियल्स मेनली बनाएंगे FIBC. वैसे ये दोनों एक्सपेंशन प्लान, वैसे हमको एक्सपेंशन लाना नहीं था, पर क्योंकि वी हैड 2 मैसिव फायर एक्सीडेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक मई 2017 में और दूसरा ये अक्टूबर 19 में. And since our insurance policy was on the reinstatement basis and our customers also needed the material, so that's the reason we came up with both these expansions. So one is already completed, started production, and next will be there in next 3-4 months to start production. So that is the second one is about 45 crore. The last year one was about 60 crore. So you can say more or less about 100 crore expansion we have done in last 2-3 years. Okay, already in place. Yeah. Prakash, your achievement in a small span of 2 decades is epic. Top line, I think, of over 500 crores, and that does not include the trading of resin also that you do quite a lot. Yeah. What lit the fire in your belly for such rapid growth? ये zeal, ये passion, इसके पीछे राज क्या? I have been raised with my maternal grandfather. So he came from Rajasthan to Ahmedabad about 60 years back, and he did about 195 partnerships in his career. He did multiple businesses, different varieties of businesses. He had a bad time also during his career, but he again jumped back because he was very ethically correct and integrity wise there was no issues. So जब से हम पैदा हुए थे हम उन्हीं को देखते आ रहे थे, और ये हमेशा कॉन्फिडेंट था कि यार काम में मजा लो, तो बस काम में मजा ही ले रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत एग्रेसिवली कुछ अचीव कर लिया है, बट जो भी किया वी हैव एंजॉयड इट. तो मेरे नाना जी, मैं बोलूंगा माय मैटरनल ग्रैंडफादर इज वन पर्सन हु हैज हेल्प्ड मी लॉट टू मोटिवेट मी टू एंजॉय द वर्क. उसके अलावा एज अ फैमिली ऑल्सो, एज अ चंपालाल ग्रुप, हम लोग सॉल्ट, टिम्बर, कैस्टर ऑयल, टैंक, मल्टीपल बिजनेसेस फैमिली में रहे हुए हैं. तो जब से पैदा हुए तब यही सब देख रहे हैं घर में, तो एक्सपोजर तो था ही. और फिर ठीक है, फिर काम पता था काम ही करना है, तो एंजॉय करते रहो, और अपॉर्चुनिटी आती गई और आगे आगे बढ़ते रहे. अच्छा, मेरा ये मानना है निधि हमेशा कि वी आर एटलीस्ट 50 years बिहाइंड चाइना. So that much of scope is there in our country. तो तो अगर अपन इतने पीछे हैं, जब हम लोग चाइना जाते हैं, वहां के सिस्टम देखते हैं, वहां पे प्रोडक्शन देखते हैं, उनका वॉल्यूम देखते हैं, तो अपने देश में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो मैं तो ये बोलूंगा कि जिस स्पीड से मैंने एक्सपेंशन किया है ना, वो तो एक्चुअली 1/10 है. क्योंकि आपको तो बहुत आगे बढ़ना है, यंगस्टर्स को बहुत आगे बढ़ना है. जस्ट you need a support from banking, you need a support from government, so there is an ample scope in our country.
Absolutely. The span of opportunity is so high that everyone can grow in leaps and bounds. Yes, yes. Prakash, with your very huge risk taking attitude, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज उसमें भी एक कुछ सीख निकलेगी. 3 साल पहले हमने लिक्विड पैकेजिंग फ्लेक्सी टैंक का बनाने का एक प्रोडक्शन की फैसिलिटी चालू की थी. हम उस वी वर वन ऑफ द 3 प्लेयर्स हु आर ओनली मेकिंग दैट प्रोडक्ट. जैसे ही हम उस इंडस्ट्रीज में अंदर घुसे, हमको पता चला कि ये मोर और लेस ये B2B प्रोडक्ट नहीं है, इट्स मोर और लेस B2C प्रोडक्ट. और इसमें कस्टमर को सर्विसेज बहुत चाहिए. इसमें आपकी चाइना ऑफिसेस चाहिए. कोई भी टैंक लीक हो जाता है, आपके 2 घंटे में आपका आदमी वहां पहुंचना चाहिए. तो हमको रियलाइज हो गया कि इट्स नॉट अवर कप ऑफ टी. लॉसेस भी किए. इमीडिएटली हमने उसको बंद कर दिया बिना कुछ सोचे. जो भी लॉसेस को बुक किया एंड वी इमीडिएटली क्लोज दैट बिजनेस अबाउट 2-3 मंथ्स. सो ओनली वन सजेशन कि कभी भी आपको लॉसेस आपको लग रहा है लॉसेस है, तो आपको इमीडिएटली इसको बंद कर देना चाहिए. इसको आप ज्यादा एक्सटेंड मत कीजिए होप के अंदर कि कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा. फिर एक टाइम ऐसा आता है तो लॉसेस इतने बढ़ जाते हैं कि फिर आप सर्वाइवल भी आपका बहुत मुश्किल हो जाता बाद में. तो दैट्स वन गाइडेंस आई वुड लाइक टू गिव टू यंगस्टर्स. एब्सोल्युटली, इट इज समथिंग लाइक गेटिंग इनटू F&O. जो लोग ट्रेडिंग करते हैं कि वो यही सोच के कि कभी ऊपर आने वाला है, वो एकदम 2008 वाला सिचुएशन हो जाता है. सो राइटफुल बिजनेस इज देयर वेयर यू नो व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू कट द लॉसेस. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. प्रकाश, यू आर एन एपिटोम हु फॉलोज हिज हार्ट. जो दिल से काम करते हैं, जो अपने जुनून से काम करते हैं. ये जो नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? जो भी यंगस्टर्स अगर आ रहा है बिजनेस के अंदर, दे वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई विल सजेस्ट दैट दे शुड लव देयर वर्क. They should not go behind money. I believe the relation between man and money, the principle of magnetics should be followed. Like poles repel and unlike pole attract. So आप जितना पैसे से ज्यादा प्यार करने लगोगे, आपसे दूर ही भागने वाला. तो आप काम एंजॉय करो, अपना पैसा आ जाएगा. जो भी करो आप एंजॉय करो. तो मैं यंग जनरेशन से आई वुड लाइक टू टेल देम जस्ट एंजॉय योर वर्क. Don't think that I want to make 10 lakh or 1 crore or 10 crore, and just whatever you do, try to enjoy the work, try to be the best, and money will ultimately follow. बहुत बढ़िया प्रकाश. और हमें ये पैंडेमिक में ये भी समझ आ गया कि पैसे की ज्यादा जरूरत है नहीं, बहुत कम रिक्वायरमेंट है एक्चुअली पैसे की. दिस पैंडेमिक ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया ये बात. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और उन न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि बहुत बिजनेस फैमिलीज है हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो अब बिजनेस को ज्वाइन कर रही हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? देखिए, अगर कोई फैमिली बिजनेस में कोई यंगस्टर्स एजुकेशन लेके जुड़ना चाहता है, तो आई विल से वन थिंग कि 2 साल तक हो सके तो उनको जॉब कराइए. अगर बंदूक चलानी सीखनी है तो क्यों अपना कंधा यूज करे, दूसरा का कंधा यूज कीजिए, वही ये बिल्कुल समझ आ जाएगा सबको. एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, बहुत अच्छा आपने ऑनेस्ट अपना एडवाइस दिया है. प्रकाश, APJ अब्दुल कलाम, उनको मैं बहुत मानती हूँ. उन्होंने कहा है कि इफ यू स्टे पॉजिटिव इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन, यू विन. आपकी लाइफ इज अ मॉडल ऑफ फेसिंग चैलेंजेस, और आपने सब चैलेंजेस से, कैलामिटीज से उभर के दिखाया है. अभी करंट पैंडेमिक के सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ अपना मैसेज दीजिए कि मुश्किलों से लड़ना कैसे है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का है. आपके मैसेज से हमारे सब व्यूअर्स को प्रोत्साहन मिलेगा. निधि, मेरा ये मानना है कि ये कैलेमिटीज को अपन ही कैलेमिटीज बनाते हैं. अगर अपन इसको समझे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आई एम श्योर दैट थिंग्स विल मच इजियर फॉर एवरीबॉडी. हमने 2 मैसिव फायर फेस कर लिए और मेरे को 1 सेकंड भी कभी टेंशन नहीं हुआ कि भाई चलो ठीक है, अभी रास्ता निकालना पड़ेगा, आगे क्या करना है, कस्टमर को कैसे सर्विस करना है, जो एम्प्लॉइज उनको भी सैलरी देनी है. तो हमने हमेशा इसको एक अपॉर्चुनिटी माना
और टेंशन हमने कभी किया नहीं, और अपने आप वो चीजें सुधरती गई और बेटर ही होती गई, मैं बोलूंगा। तो मेरा ये कहना है व्यूअर को, आप कैलेमिटी आप ही बना रहे हो, आप समझो मत उसको कैलेमिटी, आप समझो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। यू शुड बी थैंकफुल दैट यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, टू डू समथिंग डिफरेंट, टू कम आउट ऑफ इट। So that's one message which I would like to give to the. सोच है प्रकाश, हमें समझ आ रही है कि किस सोच से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। I think you are a very standing testimony to that, and I'm sure all our viewers are going to be really motivated by learning the stories that you've shared, your experiences, your life experiences. પ્રકાશ, તમારો ખૂબ આભાર કે તમે મારા શોમાં આવ્યા અને તમે તમારા જીવનના અનુભવો ખૂબ જ પ્રમાણિકપણે દરેક સાથે શેર કર્યા છો. Thank you very much, Prakash. Appreciate your time given to us, and we shall see you soon on the other side. Thank you, Nidhi. Thank you.